हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री चैनल। सो आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है? फर्स्टली भी दिस इज मेड अप ऑफ टू वर्ड। फर्स्ट इज इलेक्ट्रो, सेकेंड इज केमिस्ट्री। सो इन दिस द वर्ड इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी. Now the chemistry word means chemical energy. Chemical energy. So in electrochemistry we are talking about only the electrical energy as well as chemical energy. So if electrical energy is converted into chemical energy, what happens? And if chemical energy is converted into electrical energy, what happens? So there are two processes, beta. First is spontaneous reaction, second is non-spontaneous reaction. First is spontaneous. In this, if chemical energy is changing into electrical energy, so इस process को हम क्या बोलेंगे? Spontaneous reaction. Spontaneous reaction वो होती है जिसमें हमें किसी भी प्रकार की कोई भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती, वो अपने आप से रिएक्शन हो जाती है. Second is if electrical energy is converted into chemical energy. So these are called non-spontaneous reaction. Means हमें ये वाली जो रिएक्शन इसको करवाने के लिए क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी. Okay, so these are the spontaneous and non-spontaneous reaction. Now if we are talking about here cell, because this is electrochemistry, here we are talking about different types of cell. Like there are two types of cell. Cell is divided into two types. First is electrochemical cell. Electrochemical cell. Second is electrolytic cell. So there are two types of cell in electrochemistry. First is electrochemical cell, second is electrolytic cell. So जो हमारे पास electrochemical cell होगा, इसके अंदर हमारे पास क्या होगा? केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर चेंज होगी. केमिकल एनर्जी किसके अंदर चेंज होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर. सो केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल. अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, दिस इज अपोजिट एज टू द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी किसके अंदर? केमिकल एनर्जी के अंदर. क्लियर? हमारे पास बेसिक जो थिंग्स थी वो आपको क्लियर हो गई हैं. हमारे पास दो तरीके की रिएक्शन होती है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम क्या देखते हैं? कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो ये क्या है? रिलेशनशिप है बिटवीन किसका? इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी के बीच का. अब हम यहाँ पे देखते हैं फर्स्टली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. बिकॉज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हमारे पास दो सेल होंगे जिसको फर्स्ट हाफ सेल एंड सेकेंड हाफ सेल बोलते हैं. तो उसके अंदर हमारे पास एक सेल के ऊपर क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी. सेकेंड सेल के ऊपर क्या होगी? रिडक्शन होगी. तो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं उनकी डेफिनेशन. So first is oxidation, here is reduction. So सबसे पहले हम बात करेंगे in terms of oxygen. So oxygen अगर गेन कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? Oxidation. Gain of oxygen is called oxidation. Same here. Here gain of oxygen means in reduction loss of oxygen or removal of oxygen. Removal or loss of oxygen. Now second in terms of hydrogen. Hydrogen. There removal of hydrogen. Removal of hydrogen is called oxidation. In this we are saying
if we add hydrogen, so that process is called reduction. So addition of hydrogen. थर्ड हम यहाँ पे बात करेंगे in terms of electrons. So loss of electron is oxidation. If they are losing their electrons, so we are saying what is this? Oxidation. So here their loss of electron, so in this reduction gain of electron. Fourth definition in terms of oxidation state. अगर किसी एलिमेंट के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है लाइक 0 to +1, सो इंक्रीज हो रही है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन. तो फोर्थ इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स ऑक्सीडेशन. If decrease in oxidation state like +1 in starting and then it decreases to 0. So what is the meaning? Reduction means decrease in oxidation state. So ये तो हमारे पास क्या हो गई? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की डेफिनेशन. अब विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है. Basic simple example we are having here Na. This is converted into Na positive plus 1 electron it will lose. So see here this Na is present in elemental state means 0 oxidation state. Here +1 charge, so +1 oxidation state. So oxidation state increases. Either we can see Na is there and they are converted into Na positive and lose their 1 electron. So which reaction this is? This is oxidation. Now here if we are talking about chlorine, it gain 1 electron and converted into Cl negative. Or we can say that Cl is there, they are taking 1 electron here and converted into Cl negative. See here oxidation state is 0. After this charge is -1. So this is decrease in oxidation state. So this is what? Reduction. Or we can also say that here they are gaining electron means we are providing 1 electron to this chlorine. So this is reduction reaction. Here now we are talking about here electrochemical cell. This is very important. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. सो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हमारे पास सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोड होती क्या है. इलेक्ट्रोड एक मीडियम है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाने के लिए. सो हमारे पास बेसिकली 2 बीकर्स है यहाँ पे. फर्स्ट बीकर इज दिस, वी आर सेइंग दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमारे पास एक बीकर है, उसके अंदर हमारे पास क्या है? जिंक इलेक्ट्रोड. एंड इस जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बीकर है इसके अंदर हमने सॉल्यूशन डाला है जिंक सल्फेट. सेम हमने राइट हैंड साइड के अंदर हमने क्या लिया? यहाँ पे एक बीकर लिया है. बीकर के अंदर हमने इलेक्ट्रोड जो ली है वो कॉपर की इलेक्ट्रोड ली है और जो सॉल्यूशन फिल किया है वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन फिल किया है. एंड इनको हमने कनेक्ट किया है विद अमीटर एंड अ बैटरी. एंड यहाँ से हम यहाँ पे क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा. ओके. एंड देन यहाँ पे हमारे पास हमने प्रोवाइड किया है साल्ट ब्रिज. सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है उसको बैलेंस करेगा. अब इसकी वर्किंग हम देख लेते हैं किस तरीके से होती है. सो फर्स्टली हमारे पास ये जिंक इलेक्ट्रोड है. ये जिंक इलेक्ट्रोड कन्वर्ट होगा किसके अंदर? Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन के अंदर ये कन्वर्ट होगा. सो Zn2 पॉजिटिव आयन हमारे पास यहाँ आ जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे हमारे पास. एक्सक्यूज मी. सो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है क्या करेगी? लॉस कर रही है. तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? यहाँ से फ्लो करेंगे. सी दीज आर द 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग फ्रॉम दीज जिंक इलेक्ट्रोड. सो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है मूव कर रहे हैं कहाँ से? जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ. ठीक है. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो मूव कर रहे हैं. अब यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास क्या बच रहा है? Zn2 पॉजिटिव. अब हमारे पास Zn2 पॉजिटिव बच रहा है तो अब हमारे पास क्या होगा? यहाँ पे
ZnSO4 ऑलवेज यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इस Zn2 पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए हमें यहाँ पे कोई सॉल्ट चाहिएगा। लाइक दिस इज केटायन, अगर इसको हमको न्यूट्रल करना है तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एनायन चाहिए। और ये सॉल्ट ब्रिज यहाँ पे क्या वर्क करता है, ये हमारे पास केटायन एंड एनायन प्रोवाइड करता है एंड साल्ट को यहाँ पे क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। ये जो हमारे पास केटायन होते हैं इनको क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। तो यहाँ पे सी K2SO4, K2SO4 कहाँ पे प्रेजेंट है, साल्ट ब्रिज के अंदर प्रेजेंट है। K2SO4 किसके अंदर ब्रेक होगा, 2K पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। सो ये जो SO4 2 नेगेटिव है साल्ट ब्रिज से कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। अब Zn2 पॉजिटिव है और यहाँ पे SO4 2 नेगेटिव है, तो ये दोनों कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, यहाँ पे जिंक सल्फेट सॉल्यूशन प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या बना रहे हैं, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। तो ये जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो सॉल्यूशन हमारे पास इतना प्रेजेंट था तो ये क्या हो जाएगा, इसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ZnSO4 सॉल्यूशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि साल्ट ब्रिज में से यहाँ पे क्या आ रहा है, SO4 2 नेगेटिव आयन आ रहा है एंड जिंक इलेक्ट्रोड में से जिंक की जो आयन्स है वो आ रहे हैं। तो दोनों ने कंबाइन करके यहाँ पे क्या किया, सॉल्यूशन जो है ZnSO4 इसका लेवल इंक्रीज कर दिया। तो ये तो हमने बात की लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किस तरीके से हो रही है, हमारे पास यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड थी, जिंक इलेक्ट्रोड किसके अंदर ब्रेक हुई, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। सी दे आर लॉसिंग देयर 2 इलेक्ट्रॉन, सो दिस इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन also we can see that their oxidation state is 0 because this is elemental or free state, we can say in this +2. So oxidation state increases 0 to +2, oxidation this is. So left hand side के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है। और ये जो ऑक्सीडेशन होती है यहाँ पे ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोड होगी इसको हम बोलेंगे एनोड, इसको हम क्या बोलेंगे, एनोड। अब हम यहाँ पे बात करते हैं राइट हैंड साइड के ऊपर हमारे पास क्या हो रहा है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये जिंक से मूव कर रहे हैं कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ। अब यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रोड जो है वो ब्रेक होगी इसके अंदर कॉपर 2 पॉजिटिव एंड ये गेन कर लेगा 2 इलेक्ट्रॉन एंड कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब ये जो हमारे पास कॉपर है यहाँ पे, ये जो कॉपर है डिसोसिएट होंगे कॉपर 2 पॉजिटिव में। ये जो कॉपर सॉल्यूशन है ये डिसोसिएट होगा कॉपर 2 पॉजिटिव में। और ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव है यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसको गेन करके क्या बन जाएगा, कॉपर। तो ये अगर बन गया हमारे पास कॉपर, तो ये जो कॉपर है ये डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा इस कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो ये इस तरीके से यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। सेम यहाँ से अनदर आयन जो होगा Zn इलेक्ट्रोड है, यहाँ से अनदर आयन डिसोसिएट होगा Zn2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन वापस से यहाँ पे मूव करेंगे। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कॉपर है वो वापस से 2 इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा, कॉपर। और ये कॉपर कहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो सेम यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कॉपर सॉल्यूशन आप यहाँ पे देख रहे हो इसका लेवल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसमें से कॉपर आयंस आ रहे हैं और वो किसके ऊपर डिपॉजिट हो रहे हैं, कॉपर के इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो यहाँ पे जो साइज है कॉपर इलेक्ट्रोड का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जो हमारे पास जिंक इलेक्ट्रोड है उसका साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोड है ब्रेक हो रही है और कन्वर्ट हो रही है Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट होगा। तो यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड जो है उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा एंड सॉल्यूशन का साइज डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, सॉल्यूशन इंक्रीजेस, देयर सॉल्यूशन डिक्रीजेस। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का जो साइज होगा वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है एंड यहाँ पे इलेक्ट्रोड का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस एक्युमुलेट हो रहा है। और यहाँ पे जो कंडीशन होगी हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की, जब हम यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव, ये जो कन्वर्ट हो रहा है हमारे पास
Zn2 पॉजिटिव एंड जो कॉपर 2 पॉजिटिव है, इनकी कंसंट्रेशन यूनिटी होगी, तो इस सेल को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल। इसको हम क्या बोलते हैं? गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल। और यहाँ पे हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, दोनों के बीच में जो चार्ज क्रिएट होगा, उसको हम यहाँ पे कितना ले रहे हैं? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम यहाँ पे ई सेल की वैल्यू, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लाइक ई आर माइनस ई लेफ्ट, इसकी वैल्यू हम ले रहे हैं 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल। एंड समटाइम्स इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम डेनियल सेल भी बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। सो वर्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे सबसे पहले। तो हमारे पास यहाँ पे 2 रिएक्शन हो रही है, और आप किस तरीके से इनको लर्न करेंगे पहले हम वो देख लेते हैं। देन वी राइट ओवरऑल रिएक्शन। सो सी हियर, this is left part, this is right part. So you learn only the one part and another you get the information that is opposite to the left one. So you write alone, A-L-O-N-E. Okay. A means anode, L means left, O means oxidation, N means negative, E means electrode. So beta, how you will learn? Sometimes you will be confused. लेफ्ट साइड पे ऑक्सीडेशन होगी, रिडक्शन होगी, क्या होगा? तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। अलोन इजिली लर्न हो जाएगा। अलोन मीन्स अनोड। अनोड इज प्रेजेंट एट लेफ्ट साइड। अनोड की जो रिएक्शन होगी वो कहाँ पे प्रेजेंट होगी? लेफ्ट साइड पे होगी। लेफ्ट साइड पे क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी। एंड ऑक्सीडेशन जब होगी तो इस इलेक्ट्रोड पे यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगी। तो ये जो इलेक्ट्रोड है ये हमारे पास कौन सी है? इस साइड को हम क्या बोलेंगे? दिस इज एनोड, दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड। ओके, अनदर हाउ यू कैन राइट? यू राइट CAR. This is always positive. Car is always positive. You can write like this. Ca means cathode. R means reduction. और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। कैथोड के ऊपर क्या होती है? रिडक्शन होती है। सी, कैथोड के ऊपर यहाँ पे क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन किस तरीके से हो रही है? कॉपर टू पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन कर लिए, तो यहाँ पे क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है एंड कन्वर्ट हो रहा है कॉपर टू पॉजिटिव में। सो दीज आर द ट्रिक्स टू लर्न लेफ्ट साइड पे क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। सो दिस इज द ट्रिक। ओके, नाउ वी राइट द ओवरऑल रिएक्शन। सो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे एनोड, एनोड पे जो रिएक्शन हो रही है वो, एंड देन कैथोड पे, देन ओवरऑल रिएक्शन। यहाँ पे हमारे पास एनोड पे जो रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे हमारे पास जिंक की इलेक्ट्रोड थी। वी आर राइटिंग हियर एनोड फर्स्ट। सो जिंक की जो इलेक्ट्रोड थी वो किसके अंदर ब्रेक हुई? जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब हम यहाँ पे कौन सी रिएक्शन लिखेंगे? कैथोड। सो ऑन कैथोड जो हमारे पास कॉपर 2 पॉजिटिव थे, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और ये किसमें कन्वर्ट हो गया? कॉपर के अंदर। अब हमको जब ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है तो हम क्या कर देंगे? लेफ्ट हैंड साइड के जो हमारे पास रिएक्टेंट है इनको क्या कर देंगे? सम कर देंगे एंड देन एरो एंड देन राइट हैंड साइड। ओके, सो सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड 2 electrons are there, on the right hand side 2 electrons are there, so we can cut this. So overall reaction is zinc copper 2 positive, zinc 2 positive plus copper. So this is also a redox reaction. How we are writing? See, Zn plus copper 2 positive
Zn2 positive plus copper. So we can show like this: oxidation, and here reduction. So this is redox reaction. नाउ ये जो हमारे पास रिएक्शन है, इसके लिए हमें क्या लिखनी होती है? सेल नोटेशन लिखनी होती है। तो हम किस तरीके से सेल नोटेशन लिखते हैं? सबसे पहले उसका जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं। सो बेटा, दिस इज द टू लाइन्स यू हैव सीन, दीज आर द फॉर्म ऑफ सॉल्ट ब्रिज। वी आर यूजिंग ना हियर सॉल्ट ब्रिज। सो इसी को हम बनाते हैं टू लाइन से। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सबसे पहले आयंस, जो भी हमारे पास रिएक्शन के अंदर आयंस होंगे उसको हम लिखेंगे। और लेफ्ट साइड पे हम क्या लेंगे? लेफ्ट साइड पे ऑक्सीडेशन, राइट साइड पे हम क्या लिखेंगे? रिडक्शन, और वी कैन से दैट कैथोड। सो आयंस आर देयर, आयंस ऑल्सो हियर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? वन स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, इसको हम बोलते हैं फेज चेंज। दिस इज ऑल्सो फेज चेंज, दिस इज ऑल्सो फेज चेंज। अगर हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन के अंदर कोई मेटल प्रेजेंट है तो हम उसको लिखेंगे मेटल। सेम यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे? मेटल। तो अब हम इस जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जो हम गैल्वेनिक सेल बोल रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशंस दी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सेल नोटेशन लिखेंगे। अब हम सेल नोटेशन किस तरीके से लिखेंगे? सबसे पहले हम सॉल्ट ब्रिज अप्लाई करेंगे। नाउ सी ऑक्सीडेशन पार्ट। सो दिस इज द ऑक्सीडेशन पार्ट। ऑक्सीडेशन में हमारे पास सबसे पहले आयंस कौन से हैं? ये तो हमारे पास आयन है नहीं, 2 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव की फॉर्म में है नहीं, तो ये हमारे पास क्या है? आयन। सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? Zn2 positive also write their state aqueous. Okay, now see which is metal. Metal is this zinc. Zinc electrode is there. So zinc in solid state. Clear? On the right hand side पे हमारे पास ये रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे सबसे पहले आयंस कौन से हैं? आयंस है हमारे पास कॉपर 2 पॉजिटिव। So copper 2 positive. Then phase change. Copper is and their aqueous solution also. And then phase change and then copper in solid state. So this is the cell notation. And 3 points we will see here according to this 1.1 electron volt. What is that? If we are providing here this E cell value is same as the potential difference. So what happen if we are providing less? What happen if we be providing greater? So what happen? So there are 3 conditions. So in this, if we take E cell is equals to 1.1 electron volt, E cell less than 1.1 electron volt, E cell greater than 1.1 electron volt. इसका मतलब क्या है? यहाँ पे इसका मतलब ये है, जो हम यहाँ पे पोटेंशियल दे रहे हैं बैटरी से, अगर वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है तो क्या होगा? सबसे पहले हम इस कंडीशन को देखते हैं। तो अगर हम भी यहाँ पे 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और इनको चाहिए भी 1.1 इलेक्ट्रॉन, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अपोजिट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अपोजिट फोर्स के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं, लाइक 1.1 इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए और 1.1 ही हम अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? स्टॉप हो जाएंगे, क्योंकि हम भी अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज गिवन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट हो गया वो क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन स्टॉप। ओके, अगर हम यहाँ पे बात करें ई सेल की वैल्यू अगर कम है 1.1 इलेक्ट्रोड से, हम जो यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं ई सेल जो यहाँ पे है उसकी वैल्यू अगर कम है 1.1 इलेक्ट्रोड से, तो क्या होगा? यहाँ पे जो सेम प्रोसेस हमने देखा था, जिंक से जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे मूव करेंगे? कैथोड की तरफ, कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेंगे? जिंक टू कॉपर इलेक्ट्रोड। Now, if we are this E cell value is very greater than this 1.1 electron volt, तो ये जो प्रोसेस होगा वो क्या हो जाएगा?
अपोजिट हो जाएगा। नाउ यहाँ पे से जो कॉपर है, कॉपर के जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये जो कॉपर इलेक्ट्रोड है, कॉपर अब डिसोसिएट होगी क्योंकि अब यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है तो ये जो कॉपर की जो इलेक्ट्रोड है वो डिसोसिएट होनी स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ। सो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहे हैं, कॉपर टू जिंक। ओके, सो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।